Hello friends, welcome to our channel Analytics Ice Academy and welcome to our these society related classes where we have been discussing certain important issues related to society section of GS paper 1 dear friend, that is one important section of your GS main syllabus. और जैसा कि हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए certain issues related to Indian society dear friend, in today's class again I am here with you people to discuss one very important topic, that is the topic of diversity dear friend. So what exactly diversity means, what kind of diversity exists in India and how such diversity has given rise to emergence of a composite culture in context of Indian society. और क्या ऐसा है that because of these diversity only number of issues have emerged in context of Indian society, what kind of challenges they give rise in context of Indian society, ये सारी बातें हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे. तो एक अच्छा सेशन डियर फ्रेंड, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी, सोशल इशूज, सोशल जस्टिस सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और इन टॉपिक्स को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज है दोस्तों, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डियर फ्रेंड. और आपके जो भी डाउट्स हैं और जो भी क्वेरीज हैं आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. जब आप इंडियन सोसाइटी का सिलेबस देखते हैं फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू डियर फ्रेंड, सो दिस एंटायर सिलेबस डियर फ्रेंड दैट इज मेंशन इन 4-5 लाइन्स ओनली, बट दिस एस्पेक्ट दैट इज salient feature of Indian society and diversity of India, that is one important area dear friend. Even though it is mentioned in single line, but it carries number of implicit things, number of hidden things within itself. And year after year, if you go from previous year question paper, you will find that from salient feature of Indian society, questions have been asked on 3 important themes. One important theme is diversity and cultural pluralism in context of Indian society. जो सवाल पूछे गए हैं that has been asked related to this particular dimension. The kind of the diversity exists in case of India with regard to family system, marriage system, kinship system, उससे related भी question पूछे गए. And to what extent Indian society becomes a unique society as a result of such a diversity, that is another important theme dear friend. तो इन थीम से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, दैट इज आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी डियर फ्रेंड. क्या है डाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, व्हाट काइंड ऑफ द इश्यूज में अराइज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, वेदर डाइवर्सिटी इज अ थ्रेट और इट इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्लास डियर फ्रेंड. इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक. You must know dear friend this basic idea that no two individual are same. It is a universal fact कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसा नहीं है. There exist some differences. किसी का कलर ज़्यादा फेयर हो सकता है, किसी का कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, किसी की हाइट ज़्यादा हो सकती है, किसी की हाइट कम हो सकती है. These are differences. These are differences. Such differences can be natural differences. Such differences might be because of society generated also dear friend. So no two individuals are same. So individuals are different. हर individual क्या है, अलग है. Every individual is unique. But when you talk about diversity, diversity denotes collective differences, group differences, differences that exist at the level of what? Group. Differences that exist at the level of collectivity. So such group differences are known as diversity dear friend. So here we try to explain diversity as collective differences or group differences. और ग्रुप के लेवल पर आप दूसरे से अलग हो सकते हैं on the basis of religion, on the basis of language, on the basis of ethnicity, on the basis of race, on the basis of region in which you have been living, topography. तो इनके बेसिस पर one group can be different from what? Other group. And such a diversity dear friend, इट एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी एट मल्टीपल लेवल. भारतीय समाज में ये जो विविधता है, ये जो डाइवर्सिटी है, इट एग्जिस्ट एट मल्टीपल लेवल डियर फ्रेंड. बट वेरी ऑफन पीपल दे आर्ग्यू यूजिंग देयर कॉमन सेंस कि इफ इन एनी सोसाइटी देयर एग्जिस्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में गिव राइज टू कन्फ्लिक्ट. समाज में अगर इतने डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज,
on the basis of race, on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of ethnicity, definitely it will give rise to conflict. So क्या diversity will give rise to conflict? नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों. Diversity may not give rise to conflict. Diversity can be accommodated within society और सब कुछ हारमोनियस तरीके से चल सकता है. बट जब सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं, जो डिजायरेबल रिसोर्सेज हैं, लाइक वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जब इन रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, whenever such resources will be unequally distributed, that these resources will be cornered away by one group at the cost of what? Other group. So unequal distribution of resources in society, it will give rise to inequality, and such inequality, dear friend, it will give rise to a sense of relative deprivation, कि उस ग्रुप के पास चीज़ें ज़्यादा हैं, आपके ग्रुप के पास चीज़ें कम हैं. So unequal distribution of resources giving rise to inequality, and such inequality in society, it will give rise to a sense of relative deprivation, that is source of conflict. डाइवर्सिटी की वजह से conflict नहीं हो रहा है. conflict इस वजह से हो रहा है कि सोसाइटी में जो essential resources हैं उन्हें unequally distribute किया जा रहा है, और since इन्हें unequally distribute किया जा रहा है, तो जिन लोगों के पास ये चीज़ें हैं और जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, जिनके पास नहीं है, they are developing a sense of relative deprivation, and because of that relative deprivation, dear friend, there might be conflict in society. So conflict is not taking place because of diversity per se. Conflict is taking place because of unequal distribution of resources. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी यू विल फाइंड. रिलीजियस लेवल पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं दोस्तों. On the basis of language, you will find numerous languages are there. After every 100 kilometer, 200 kilometers, some new dialect, some new language you will find. So these are the multiple languages, dear friend. On the basis of race, आप पाएंगे कि बहुत सारे रेशियल ग्रुप्स हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं. कास्ट सिस्टम के बेसिस पर आप पाएंगे. देयर वाज ए वर्णा थ्योरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रस, अनटचेबल. बट रियलिटी में थाउजेंड्स ऑफ कास्ट आर देयर, डियर फ्रेंड. जातियां हैं बहुत सारी. जाति के लेवल पर, कास्ट के लेवल पर डाइवर्सिटी है. ज्योग्राफी के बेसिस पर दोस्तों, सम पार्ट यू स्टडी एज डेक्कन प्लेट्यू, सम पार्ट यू स्टडी एज अ फॉरेस्ट कवर, डेजर्ट एरिया, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. कल्चर के बेसिस पर दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में जनरली यू मैरी समवन हु इज अननोन टू यू. इन साउथ इंडिया जनरली यू मैरी समवन हु इज नोन टू यू. विद इन रिलीजन, डियर फ्रेंड, there are different kind of the preferences. So marriage pattern, family pattern, kinship system, they vary across various regions, dear friend. भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मैरिज के तरीके हैं, मैरिज के प्रेफरेंसेस हैं, रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं. किनशिप को लेकर अलग अलग टर्म्स हैं, डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म्स हैं, क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्म्स हैं. तो भारत में बहुत सारा वेरिएशन है, डियर फ्रेंड, एट द ग्रुप लेवल. But despite these variation, despite so much diversity, देखिए डाइवर्सिटी है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं दोस्तों. हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यू वर सेंट्रली लोकेटेड ऑन सिल्क रूट. एक सिल्क रूट हुआ करता था तो एशिया को यूरोप से क्या करता था, कनेक्ट करता था, जहाँ पर भारत एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर थे. और बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रैवलर्स हिस्ट्री में भारत में आए. बहुत सारे ग्रुप्स, शाकास, सातवाहन, हूण, Muslims, then Jews, Parsis, Christians, they came from outside, dear friend, and they became part of what? This Indian culture. And because of that reason, because of your unique position, because of your tolerant and accommodative culture that existed in your historical past, India has developed a composite culture दोस्तों. जो भी भारत में आया वो भारत का ही बनकर रह गया. And that's why, because of that, dear friend, you never say that this country belongs to a particular community. In fact, all those people who have ever came to India, they got accommodated within culture of India. भारतीय कल्चर में वो क्या हो गए, समाहित हो गए. And it has given rise to a composite culture, dear friend. So diversity is there, but despite that diversity, dear friend, आप हमेशा ये बोलते हैं कि भारत में एक सेंस ऑफ क्या है, यूनिटी है, डियर फ्रेंड, और बहुत सारे यूनिफाइंग फैक्टर्स हैं.
संविधान आपको एक सिंगल आइडेंटिटी देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, रीजन, किसी के भी इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको एक सिंगल आइडेंटिटी मिलती है कि आप भारत के नागरिक हैं दोस्तों। जियोग्राफिकल एक सेंस ऑफ यूनिटी है आपके पास एक हिस्टोरिकल यूनिटी है डियर फ्रेंड। इंडिया का एक यूनिक कल्चर है। हाँ, हिस्टोरिकली अगर आप देखें, देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पर तो आपने डिक्लेयर किया कि भारत एक सेकुलर स्टेट होगा, आपने बाद में प्रियम्बल में भी इसे ऐड किया। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो एक तरह से ये कल्चरल और हिस्टोरिकल कंपल्शन रहा है। हिस्ट्री को अगर आप देखें तो अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटी के लोग बाहर से आए भारत में, बहुत सारे नए रिलीजन इंडिया में क्या हुए, इवॉल्व है, और इस वजह से रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस फ्लेक्सिबिलिटी, इट ऑलवेज एग्जिस्टेड इन इंडिया डियर फ्रेंड, जिसमें आप बोलते हैं कि वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर डियर फ्रेंड। एक सेंस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है जिसकी वजह से आप लोग को एक सेंस ऑफ यूनिटी मिलती है। बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं दोस्तों, क्रिकेट या फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स हैं, बॉलीवुड जैसा सिनेमा है, ठीक है, इंटर स्टेट मोबिलिटी की आपको फ्रीडम है। इन वजहों से भारत में एक सेंस ऑफ यूनिटी है डिस्पाइट दैट डाइवर्सिटी। सो इफ यूपीएससी आस्क यू दैट डिस्पाइट सो मच डाइवर्सिटी व्हाट आर द यूनिफाइंग फैक्टर्स डियर फ्रेंड, तो देखिए ये कुछ यूनिफाइंग फैक्टर्स हैं जिसमें डाइवर्सिटी के बाद भी भारत में एक सेंस ऑफ क्या है, यूनिटी है दोस्तों। बट देखिए ये बात भी सच है कि अगर किसी भी देश में इतनी डाइवर्सिटी होगी, सो मच डाइवर्सिटी विल एग्जिस्ट, सो मच डाइवर्सिटी डियर फ्रेंड, इट मे गिव राइज टू सर्टेन चैलेंजेस डियर फ्रेंड। क्योंकि देखिए कहीं भी अगर सोसाइटी में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंसेस हैं, तो रिसोर्सेज को सभी को इक्वली अवेलेबल करा पाना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो। तो सच डाइवर्सिटी डियर फ्रेंड, इट मे गिव राइज टू सम रीजनल डिवीजन, जहाँ पर भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर आपने राज्यों का क्या किया है, गठन किया है। और देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि नॉट ऑल रिसोर्सेज यू मे फाइंड इन वन पर्टिकुलर स्टेट। कुछ राज्यों में ये रिसोर्सेज शायद ज़्यादा हों, कहीं पर कुछ कम हो दोस्तों। पर जब आप डेवलपमेंटल एजेंडा लेकर आगे बढ़ते हैं, आपका राज्य आगे बढ़ता है, तो वेरी ऑफन इट मे डेवलप, इट मे हैपन डियर फ्रेंड दैट सम रीजन्स दे मे डेवलप एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू अदर रीजन्स डियर फ्रेंड। किसी दूसरे राज्य की अपेक्षा किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो इट मे गिव राइज टू सेंस ऑफ रीजनलिज्म, रीजनल पॉलिटिक्स डियर फ्रेंड, developmental imbalances. Some regions they might develop this idea that since we are geographically isolated, economically also we are isolated, from development also we have been isolated, and because of that I am saying कि such a diversity it may give rise to certain challenges। इस diversity की वजह से बहुत सारे challenges हो सकते हैं दोस्तों। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप पाएंगे कि देखिए डाइवर्सिटी की वजह से किस तरह के चैलेंजेस हुए हैं दोस्तों। कई बार आपको ऐसा सुनने को मिलता है कि रिलीजन के बेसिस पर एक तरह का कन्फ्लिक्ट, रिलीजियस रॉयट्स, रिलीजियस टेंशंस आपको देखने को मिलते हैं। राज्यों के बीच में साउथ वर्सेस नॉर्थ स्टेट, नॉर्थ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इस तरह की बातें आपको देखने की मिलती है। और कई बार देखिए ऐसा होता है कि सम एक्सटर्नल एजेंट्स, ठीक है, बॉर्डर एरियाज में, हाँ, दूसरे देश कई बार लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारी तरह हैं, हमारा जो रेशियल आउटलुक है, आपका जो रेशियल आउटलुक है वो सेम है, सो वाई यू हैव बीन लिविंग विद दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इफ सो मच डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी, एक बड़ा चैलेंज उस सोसाइटी में इमर्ज होता है कि कैसे लोगों को यूनिफाई करके रखा जाए। और आप देखेंगे अगर आप इंडियन नेशनलिज्म को देखें तो देखिए जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे, दे वर ट्राइंग टू क्रिएट ए सेंस ऑफ नेशन। तो भारतीय जो राष्ट्रवाद है, इंडियन जो नेशनलिज्म है, दैट इज रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन नेशनलिज्म। जब आप यूरोपियन नेशनलिज्म को पढ़ते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है दोस्तों। बट भारत में आप देखेंगे तो कल्चरल बेसिस पर बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। तो आवर अर्ली नेशनलिस्ट दे वर ट्राइंग टू क्रिएट a sense of nation building despite so much diversity। they tried to create an idea of India। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी आप देखें, विद द हेल्प ऑफ दोस नेशनल सिंबल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, इनफैक्ट योर नेशनल एंथम, इट कैरीज दोस एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी डियर फ्रेंड। अगर आप उसे रीड करें तो इस एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी को उसमें इंक्लूड किया गया है।
और डाइवर्सिटी में गिव राइज टू नंबर ऑफ चैलेंजेस, बट डिस्पाइट दोज चैलेंजेस संविधान में ऐसे प्रावधान रखे गए दोस्तों, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स दे हैव टेकन मेजर्स ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सभी को साथ ले चलने का प्रयास किया। इसके थ्रू आप इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकते हैं विद इन सच यूनिक कल्चर ऑफ इंडिया। और अगर आप जब भारत में बात करते हैं तो हो सकता है कि इंडियन स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेकुलर स्टेट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बाद में इसे आपने प्रियम्बल में क्या किया, एड ऑन किया 1976 में। बट भारत में एक जो सेकुलरिज्म है सोसाइटी के लेवल पर, ये इस वजह से है दोस्तों कि डिस्पाइट दीज कलेक्टिव डिफरेंसेस, रिलीजन, रेस, ethnicity, language, people they have developed this idea that we all are Indian. एक Indian identity है that lies above these different identities that exist at group level or that regional level. So India के context में जो nation building है, India के context में जो secularism है, उसे आप relate कर सकते हैं with this concept of diversity, dear friend. So one question for you for assignment is highlight the significance of regional and cultural diversity in nation building of India. तो जब भारत में नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा था तो किस तरह के चैलेंजेस हमारे अर्ली नेशनलिस्ट को फेस करना पड़ा होगा, और उस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट पाथ ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट दे हैव अडॉप्टेड, एक अकोमोडेटिव नेशन बिल्डिंग, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. So that kind of Indian nationalism emerged during early year of nation building. So I hope this concept of diversity you people would have understood, dear friend. और कैसे इस डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में नेशन बिल्डिंग का एजेंडा अर्ली जो आपके फाउंडेशनल फिगर्स थे, आपके जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने लीड किया. और दोस्तों अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2026 के एग्जाम को आप एक स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स IAS are going to launch a new foundation batch from 25th of this month, जिसमें एक ही प्रोग्राम के तहत आपके प्री मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी along with आंसर राइटिंग सेशन, मेंटरशिप सेशंस, टेस्ट सीरीज, essay preparation, all dimensions of preparation we will try to cover under one single program, dear friend. तो अगर इस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं. Thank you to all for joining me and for staying with me, dear friends. Thank you.